Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about the 31st aphorism. We would like to brief the 21st aphorism, that is pathogenetic symptoms curative in medicine. Aphorism number 22, which states contraria contribus curantur. Aphorism number 23, which states the demerits of antipathy. Aphorism number 24, which states the similia similibus curantur. Aphorism number 25, which states the merits of homeopathy. Aphorism number 26, which states the homeopathic law of cure. Aphorism number 27, which states the curative power of medicine. Aphorism number 28, which states the confirmation of law of nature. Aphorism number 29, which states how homeopathic cure takes place. Aphorism number 30, which states the regulation of dose. And aphorism number 31, which states how medicine acts unconditionally. Now let us read aphorism number 31. It states, the inimical forces, partly psychical and partly physical, to which our terrestrial existence is exposed, which are termed morbific, noxious agents, do not possess the power of morbidly deranging the health of man unconditionally, but we are made ill by them only when our organism is sufficiently disposed and susceptible to attack of the morbific cause that may be present and to be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensations and functions. Hence, they do not produce disease in everyone nor at all times. When I call a disease a derangement of man's state of health, I am far from wishing thereby to give a hyperphysical explanation of the internal nature of disease generally, or of any case of disease in particular. It is only intended by this expression to intimate what it can be proved diseases are not and cannot be, that they are not mechanical or chemical alterations of material substance of the body, and not dependent on a material morbific substance, but they are merely spirit-like conceptual dynamic derangements of the life. तो इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने इनिमिकल फोर्सेस के बारे में कहा है. इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल. तो ऐसी फोर्सेस जो या तो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो. ठीक है, साइकिकल मीन्स मेंटल एंड फिजिकल, to which our terrestrial existence is exposed. ऐसी फोर्सेस को एक और टर्म भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं morbific noxious agents. ठीक है, इन morbific noxious agents के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हर आदमी की हेल्थ को डीरेंज कर सके या हर किसी की वाइटल फोर्स को डीरेंज कर सके. अनकंडीशनली नहीं कर सकते. तो इनिमिकल फोर्सेस को एक्ट करने के लिए एक सर्टेन कंडीशन की ज़रूरत है, और वो कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है? एक इंसान की ससेप्टेबिलिटी और उसका डिस्पोजिशन. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने यही पढ़ा कि ये इनिमिकल फोर्सेस तभी किसी ऑर्गेनिज्म को सिक बना सकते हैं या उसको इल कर सकते हैं जब एक सफिशिएंट डिस्पोजिशन या ससेप्टेबिलिटी हो टू द अटैक ऑफ मॉर्बिफिक कॉज. और यही जो कॉज के लिए ससेप्टेबिलिटी या डिस्पोजिशन होता है, यही उसकी हेल्थ को डीरेंज या ऑल्टर कर सकता है. जिन भी इनिमिकल फोर्सेस को या जिन्हें हम एजेंट्स कहते हैं, मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट्स, ये हर इंसान में, हर इंडिविजुअल में सेम डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता और एक टाइम पे भी नहीं कर सकता. सपोज़ 4 लोग एक फंक्शन में गए और जब फंक्शन से अगले दिन वापस लौट कर आए तो एक के पेट में दर्द हो रहा है, एक के सिर में दर्द हो रहा है, एक को खांसी ज़ुकाम हो गया और एक को कुछ भी नहीं हुआ. एनवायरनमेंट तो चारों का सेम था, एक ही फंक्शन पे गए, एक ही जैसा खाना खाया, पर लेकिन किसी को कोई सेट ऑफ सिम्टम आया, किसी को कोई सेट ऑफ सिम्टम आया. ठीक है, तो मॉर्बिफिक एजेंट्स तो सबके लिए सेम थे, पर लेकिन उनकी ससेप्टेबिलिटी और उनका डिस्पोजिशन जैसा था, उसी तरीके से उनके वाइटल फोर्स ने एक्ट किया. नेक्स्ट स्टैंजा में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि जब वो ये बात बोलते हैं कि एक आदमी की स्टेट ऑफ हेल्थ डीरेंज हो गई है, तो उसके लिए कोई सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है डिजीज़ की.
वो ये कहना चाह रहे हैं कि डिजीज़ेज आर नॉट मैकेनिकल नॉर केमिकल चेंजेस इन द बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। इंस्टेड ये तो डायनामिक डिस्टर्बेंस है जो वाइटल फोर्स में हुई, जिसकी वजह से द पेशेंट इज सफरिंग। डॉक्टर हेनेमन ऑल्सो सेज दैट diseases are not caused by tangible material substances, but rather they are affected by the dynamic disturbances in the vital force, which makes the body susceptible to the effects of harmful agents in its environment. अब यहाँ पे इस एफोरिज्म में समझने वाली बात ये है कि ससेप्टिबिलिटी और डिस्पोजिशन में क्या अंतर है, क्योंकि उन्होंने दोनों वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि द पर्सन हु इज़ डिस्पोज्ड एंड ससेप्टेबल टू सर्टेन काइंड ऑफ मॉबिफिक कॉज वही इलनेस को प्रोक्योर करता है। तो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी और डिस्पोजिशन का क्या मतलब है, इन दोनों चीज़ों का अगर डिफ्रेंसिएशन समझें तो डिस्पोजिशन क्या है। डिस्पोजिशन इज़ बेसिकली द डिजीज़ टेंडेंसी दैट यू आर जेनेटिकली बॉर्न विद, जो आप जन्म से लेके आते हैं कि हाँ ये टेंडेंसी आपकी हो सकती है। सपोज़ 2 में से किसी एक पेरेंट को भी डायबिटीज़ है तो ये चांसेस होते हैं कि वो बच्चे में भी चला जाए थ्रू जीन्स, राइट। तो ये जो जेनेटिक अफेक्शन है, जो जेनेटिक टेंडेंसी है किसी इंसान की डिजीज़ एक्वायर करने की, उस टेंडेंसी को हम डिस्पोजिशन कहते हैं। यानी कि अगर आपके मदर फादर में से किसी को डायबिटीज़ का इशू है तो हो सकता है कि आपको भी वो हो जाए, आप उस बीमारी को लेके डिस्पोज्ड हैं। अब ससेप्टेबिलिटी की बात आती है तो ससेप्टेबिलिटी क्या है? इट इज़ अ कंडीशन वेयर यू हैव अ लो वाइटैलिटी, जिसकी वजह से आप प्रोन हो जाते हैं किसी डिजीज़ को, राइट। व्हेन यू बिकम प्रोन ड्यू टू दिस लो वाइटैलिटी स्टेट, तो उसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। मान लीजिए कि 2 में से किसी एक पेरेंट को भी अगर डायबिटीज़ है तो पेशेंट में चांसेस हैं कि उसको डायबिटीज़ हो, क्योंकि एक टेंडेंसी आ गई थ्रू जीन्स, ठीक है। पर लेकिन जब तक उसे वो स्ट्रेस फैक्टर, वो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं मिलेगा, कोई मेंटल कंप्लेंट नहीं आएगी पेशेंट को, तब तक तो वो नहीं होगा ना ससेप्टेबल टू डायबिटीज़। तो वो ससेप्टेबिलिटी आती है व्हेन द पेशेंट एक्सपीरियंसेस लो वाइटैलिटी। तो जब वो लो वाइटैलिटी फील करेगा तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने बस इतना ही समझाया है। दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।